Thank you, Prakash ji, for that very enlightening address. I'd like to have a link to your mobile app so that I can also keep seeing कि मेरा NTPC का प्लांट नहीं पोल्यूट कर रहा और आपकी चिट्ठी आ जाए मेरे पास. मेरे सीनियर कलीग, मेरे मित्र भी और एक तरीके से जिनके सानिध्य में काम करने का मुझे लगभग अब 30 वर्ष का मौका मिला है, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जिनको अगर हम हीरो ऑफ पेरिस कहें भारत के लिए तो वो गलत नहीं होगा. ट्रूली somebody who made India proud with his smiling and charming nature. He was able to get 190 countries to agree to everything that India wanted. और एक बात मैं जरूर आप सबको कहना चाहूंगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पेरिस का. हमारी एक कई बायलैटरल मीटिंग्स थी प्रधानमंत्री जी की. वो मेरे ख्याल से 24 घंटे से कम के लिए वहां थे, लेकिन उस 24 घंटे में दो विशेष चीजें मेरे आंखों के सामने मैंने देखी. एक अनुभव यह आया कि प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से पूरे विश्व के लीडर्स वू कर रहे थे, you woo somebody you really like. University students keep wooing their friends for seeing a movie maybe. But the way the entire leadership of the world, to the extent that the last meeting President Hollande of France had just before the inaugural of COP21 was with Prime Minister Modi. So 10:30 to 11 we had a bilateral with President Hollande. 11 the inaugural started. That was the level of importance that Prime Minister had, and all major countries literally making a beeline to have a bilateral, to meet with them, to discuss with them the way forward, what should be the outcome of Paris. But the second is a even more interesting engagement that we had. We had a meeting with President Obama at about 4 o'clock, and then the Japanese Prime Minister Shinzo Abe-san, he requested for a bilateral, which was at the only slot possible was again 3:45. So President Obama's visit was changed, meeting was changed to 4:15. But Prakash ji और मैं 4:15 बजे वहां पहुंच गए. 4:15 we were both there. Obviously you have to be on time on these things. And much as I am very infamous for always being late, but President Obama also reached there at 4:15. Prime Minister got a little delayed because the Shinzo Abe meeting went on longer. So we had a situation that Prakash Javadekar, President Obama, John Kerry and I were standing with the entire media, and India के ज़्यादा लोग नहीं थे, पर American media capture कर रहा था दूर से shots. They could not hear our conversation. And वो जो मैंने दृश्य देखा, और मैं इसलिए उसी से शुरू कर रहा हूँ, before even my salutations to the honorable dignitaries on the stage, just to give you a flavor of Prakash Javadekar. हम 4 लोग खड़े हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा से पहले भी मिलने का अनुभव हुआ था जब वो भारत आए थे. तो पहले मेरी तरफ देख के कुछ बोलने लगे कि भारत ने ऐसा करना चाहिए, भारत ने पेरिस की इंपॉर्टेंस क्या है, नेगोशिएशन. मैं क्या, एक्सक्यूज मी प्रेसिडेंट, आई एम नॉट द नेगोशिएटर, ही इज. एंड 1 मिनट में वो पलटी खाए. तो उनका अमेरिकन के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, शायद प्रेस भी है इस रूम में तो संभालूंगा. उन्हें तो मेरा कहीं वीजा ही नहीं कैंसिल हो जाए. मोदी जी का तो कई वर्षों तक उन्होंने कैंसिल करके रखा या अलाउ नहीं किया. फट करके पलटी करके प्रकाश जी के कंधे पे, प्रकाश जी याद होगा आपको वो दिन, प्रकाश जी के कंधे पे हाथ रख के, और इज अ टॉल पर्सन, प्रकाश जी के कंधे पे हाथ रख के, यू आर द मैन, यू हैव टू सेव द वर्ल्ड. और वो जो मैंने दृश्य देखा, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ओबामा प्रकाश जी को आधे घंटे तक, जब तक मोदी जी नहीं आए, आधे घंटे तक जॉन केरी और प्रेसिडेंट ओबामा जैसे इनको पटाने की कोशिश कर रहे थे, इफ आई मे यूज माय मुंबई लैंग्वेज,
मैं समझता हूं वास्तव में पता नहीं छप्पनी छाती चौड़ी इनकी तो हुई कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मेरी जरूर छाती 56 इंच की हो गई उस दिन. इट वॉज ट्रूली अ वेरी वेरी encouraging moment to witness. Somebody who the world believes is the most powerful man in the world. I said the world believes, not necessarily what Prakash and I believe. But somebody like that, literally harrowing, if I may use that word, Prakash ji, कि भाई आपको बस आपको इस समझौते में किसी तरीके से समर्थन देना है, आपको इस समझौते के साथ चलना है. और जो उसके बाद जिस प्रकार से भारत को नेतृत्व दिया प्रकाश जी ने, जैसे प्रधानमंत्री जी के विजन को उन्होंने कार्यान्वित किया, और एक प्रकार से जो फाइनल एग्रीमेंट अब वो 22 तारीख को साइन करने जा रहे हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन हिज एबिलिटी टू really be an outstanding negotiator at the international stage to protect the interest not only of India but of the entire developing and emerging world, not only of the people of India but most people around the world who are going to suffer the consequences of indiscriminate pollution that the West has given out into this world. I think, Prakash ji, the world will be grateful to you for your excellent efforts in Paris. हम सबके बीच डॉक्टर अनिल काकोडकर हैं, somebody whom we have all looked up to for so many years. मेरा भी बहुत पुराना संबंध है. एक प्रकार से उन्होंने भी सरकार में रहते हुए एक सरकारी नौकरी नहीं की, लेकिन देश की सेवा की. अगर उनके काम को उस प्रकार से देखें तो कोई गलत नहीं होगा. डॉक्टर संजय देशमुख के साथ मैंने एक और कार्यक्रम पीछे किया था, तो मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि अब मुंबई यूनिवर्सिटी को एक नई लीडरशिप मिली है. डॉक्टर साहब, आपको और हमारे डिपार्टमेंट को मिलके इसमें कुछ और एंगेजमेंट पार्टनरशिप के रूप में वी शुड टेक दिस डायलॉग फॉरवर्ड, हाउ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड मे बी सम ऑफ आवर PSUs और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन वर्क टुगेदर टू इनकलकेट दैट स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, spirit of research, spirit of letting the mind flow and come up with new ideas, flourish amongst our young children. And being a Mumbaikar and a student of your university for 5 and 3, 8 years, so I think it will only be a small debt of, or repaying a debt of gratitude that I owe to my university. So I'll be delighted to do any project that you may like to put up. अजय माथुर से तो मेरी शिकायत है, क्योंकि वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे थे एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, पर शायद थोड़ा रिसर्चर का जो या एक थिंकर का जो माइंड है वो उसमें उनका पूरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था. तो अब डीजी ऑफ टेरी के रूप में एक नए रूप से देश की सेवा करने में जुटे हैं. बट आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड my deepest appreciation for Ajay for the wonderful leadership he gave to the Bureau of Energy Efficiency. आज जो ये LED का प्रोग्राम इतना देश भर में सफलता भी पा रहा है और आगे तेजी से और बढ़ेगा, उसमें PAT स्कीम, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी को और एक प्रोत्साहन मिले. और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था उस लॉन्च के कार्यक्रम में, every unit of electricity we save is effectively 1.3 units of electricity generated, and that saving is sustainable, is permanent, and ultimately goes towards mitigating the environmental impact, saving further pollution. So thank you, Ajay ji, for all the work that you did for the people of India. Or Terry, maybe you please continue to come up with new and bright ideas which can help us fulfill the commitments. Actually, not the commitments, the contributions. I wanted to mention that it's our intended nationally determined contributions. But we'd like to work with you to further that agenda in the days to come. Dr. Neeraj Hatekar ji, Director of the Economics Department,
वास्तव में हम साइंस और टेक्नोलॉजी कितना भी कुछ डेवलपमेंट कर ले, वो सबसे बड़ा रुपया एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक आपको इकोनॉमिक्स में जोड़ना पड़ेगा कि कैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को इकोनॉमिकली वायबल किया जाए। और एक प्रकार से लगभग ऊर्जा के क्षेत्र में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो जो प्रोजेक्ट्स लें उसको इकोनॉमिकली वायबल करके देश के सामने रखें। कोई सब्सिडीज के माध्यम से देश का सुधार सिर्फ हो, ये संभव नहीं है। आखिर अगर सोलर एनर्जी 8 रुपए 7 रुपए की बिकती, जो 2 साल पहले बिकती थी, तो देश वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। आज देश में गरीबी है, देश में कई लोग हैं जिनको 100-200 रुपए का बिजली बिल भरने में तकलीफ होती है। वो चोरी अगर कोई करता है तो वो कोई, मेरा मानना है कि कोई वो शौक है चोरी करने का, उसके लिए नहीं करता है। एक शायद देश की स्थिति भी आज बड़ी गंभीर है, लोगों में आमदनी नहीं है लोगों के पास। तो कैसे इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स करके हमने अपने आईएनडीसीज अचीव करना। So I'm glad that you are here and you'll be participating in the deliberations, because all the projects that we come up with have to be end of the day made economically viable. I must place on record the deep appreciation of all of us in this room and the government of India to the good work that Vigyan Bharati is doing. मेरे ख्याल से जिस प्रकार से विज्ञान भारती पूरे देश भर में नौजवानों में, युवा युवतियों में एक साइंस के प्रति इंटरेस्ट जागृत करने का काम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। प्रोफेसर सुहास पेडनेकर जी रुया कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, विज्ञान भारती के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं आज के कार्यक्रम के लिए, और आगे के लिए शुभकामनाएं कि इसको और तेजी से आप बढ़ाइए। अब विज्ञान भारती को एक शेल में से निकाल के इट हैज टू फ्लावर, वेल आई वुड लाइक टू से इट हैज टू फ्लावर लाइक अ लोटस, पर फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए, इसलिए आई रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग दैट। माय गुड फ्रेंड अरुणब घोष, एक्चुअली आई हैव बीन ट्राइंग टू वू हिम कि वो CEW छोड़ के मेरे साथ सरकार में काम करना शुरू करे। अभी भी मैं डॉक्टर काकोडकर को बोल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काउंसिल फॉर एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के माध्यम से। इनकी एक रिपोर्ट मैंने करीब 6 महीने पहले दिल्ली में देखी थी, उसका निवारण भी किया था। इट वॉज ट्रूली अ वेरी वेरी डिटेल्ड ऑन द ग्राउंड सर्वे ऑफ द एनर्जी सिचुएशन। तो मैं समझता हूं इस पूरी आज का मैंने प्रोग्राम भी अभी देखा, उसको देख के आई गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट India can do it. India can achieve all that Prakash ji has discussed and has devised as the framework agreement that he is going to execute on 22nd. और आप सभी महानुभाव जो यहाँ पे हैं, आप सबका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम इसमें पूरी सफलता पाएंगे। और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने बात रखी है, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस अचीव ही नहीं करेंगे, उसको एक्सीड करेंगे। एंड आई सीक योर सपोर्ट, योर ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल ऑफ यू इन दिस रूम एंड द पीपल ऑफ इंडिया टू मेक दिस हैपन। एंड ऑल द डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, कई मित्र बैठे हैं, सबका नाम नहीं लूंगा। खन्ना जी तो मेरे ख्याल से सालों से हमको नोट्स देते जाते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाए, कैसे लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, कैसे एनर्जी सब घरों तक पहुंचे। अश्विन भाई श्रॉफ वगैरह सबसे हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, जिन्होंने एनवायरनमेंट के प्रति काफी काम किया है। हमारे मित्र और पराग अलवानी जी यहाँ के विधायक हैं। कई मित्र यहाँ पे हैं जिनका नाम सभी का नहीं ले पाऊंगा, बट इट्स ट्रूली अ डिलाइट टू बी हियर। और मैं सोच रहा था कि विषय रखते हुए क्या प्रमुख मुद्दा हो सकता है, और अगर कोई प्रमुख मुद्दा जो मेरे ध्यान में आता है वो वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए जो मैं देख रहा हूं कि भारत
का रोल क्या होगा आगे चल के एनवायरनमेंट के प्रति, पर्यावरण सुधारने के प्रति, और विश्व की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन या उनका सहयोग क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा. वैसे तो देयर इज अ वेरी ओल्ड नेटिव अफ्रीकन प्रोवर्ब, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ from our ancestors. We actually borrow it from our children. And I think this really encapsulates the situation we are in today. And in some sense, अगर विश्व की डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखो तो उन्होंने इस बात को कभी समझा नहीं, इसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया. आखिर हमारे तो इतिहास में देखे तो ऋग्वेद में कहा गया है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द यूनिवर्स, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. एक वैदिक हाइम मुझे ध्यान में आता है, द स्काई इज लाइक द फादर, द अर्थ इज लाइक मदर, एंड द स्पेस एज देयर सन. स्काई एज द फादर, अर्थ एज द मदर, द स्पेस एज देयर सन, एंड द यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री इज द होल फैमिली. इट्स लाइक अ फैमिली. And any kind of damage to any one of the three, it could be to the father, to the son, or to the mother, it throws the universe out of balance. And in some sense, if we were to see the history of the last 150 years, what has happened is, in the unmitigated thirst and hunger for development, we have completely messed with Mother Earth. Because of what we did to Mother Earth and throughout all the pollution and greenhouse gases, we messed up the universe. And in some sense, because of what we did, we were never able to take the benefit of what God has given to the earth. That's the sun, the wind, water, all of these natural resources we have unfortunately not recognized and respected, and that is the cause for the current day distress that we have reached today, where the world has come to accept that amongst the two biggest challenges that the world is facing today, environment is one and terrorism is the second. And in this context, the success of bringing down 1,600 points of differences to zero amongst the 190 nations is truly a remarkable achievement, where global leaders, everybody have contributed. Any negotiation is always, you achieve something, you let go of something. And that process was carried out very, very successfully. I know Prakash ji used to be up for 24 and 48 hours at a stretch. कई बार हमारी भी बात होती थी. At times which I used to wonder कि अब तो रात के 3 बजे होंगे पेरिस में, प्रकाश जी क्या कर रहे हैं. लेकिन जिस प्रकार से भारत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा पेरिस में, नेगोशिएशंस में, बाकी देशों को साथ में जोड़ने में, अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखने में, जो प्रकाश जी ने सही कहा, पूरे विश्व ने आज सस्टेनेबिलिटी को और लाइफस्टाइल को जोड़ा है. यू कैनॉट हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड बट येट हैव वेस्ट एंड वेस्टफुल कंजम्पशन इनडिस्क्रिमिनेटली इन द डेवलप्ड एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. मैं तो कई बार, अभी मैं नहीं मोबाइल निकालूंगा, नहीं तो लगेगा इस मिनिस्ट्री में सभी मोबाइल निकाल के अपना दिखाते हैं. पर मैं जिस देश में जाता हूं, रात को 2-2:30 बजे जाते हैं मीटिंग्स वगैरह करते करते, तो मैं रात को जरूर विंडो पे जाके फोटोज लेता हूं, क्योंकि लगभग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में होटल्स के साथ ही सब ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. एंड इट अमेजेस मी टू सी कि ये देश बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी है, कोल के ऊपर बड़ा तीव्र अटैक करते हैं, कोल बंद करो यूज करना. लेकिन 100 माले की ऑफिस बिल्डिंग्स, 100 स्टोरी बिल्डिंग्स,
हर बिल्डिंग के हर ऑफिस की लाइट, और एक लाइट नहीं बट ब्राइटली लिट अप ऑफिसेस जो अमेरिका, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, टोक्यो, मेलबर्न, सिडनी, लंदन, यू नेम द सिटी, रात भर लाइट्स चालू रहती हैं पूरी। एक आदमी काम नहीं कर रहा है। लाइट इतनी होती है कि दूरबीन लगाऊं तो मैं वो कागज भी पढ़ पाऊंगा जो टेबल पे छोड़ा हुआ है। दैट इज द लेवल ऑफ वेस्ट। और फिर उस वेस्ट के अलग अलग एलिमेंट्स देखे तो ऑन अ लाइटर नोट, अमेरिका का पिज्जा का साइज, अमेरिका में पिज्जा इज एटलीस्ट दिस बिग। आजकल उनमें जागरूकता आई है कि वो पिज्जा खा खा के शायद डायबिटीज और वजन की कठिनाई होने लगी है लोगों को अमेरिका में। लेकिन द पिज्जा इज दिस बिग, नो ह्यूमन बीइंग कैन कंज्यूम इट। उसमें अगर वेस्ट होता है तो वो वेस्ट अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट होता है, क्योंकि उसको बनाने में किधर ना किधर पानी का इस्तेमाल हुआ है, किधर ना किधर बिजली का इस्तेमाल हुआ है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई व्हीकल से आया है, जिस व्हीकल की एक कैपेसिटी होती है। इतना बड़ा पिज्जा बनाओ तो एक खर्चा कुछ होगा, इतना बनाओ तो खर्चा कुछ और होगा। और मैं जानता हूं, हम संघ की शाखा में जाते थे या कोई भी कार्यक्रम या कैंप में जाते थे, तो वहां पे हमें सबसे पहली शिक्षा क्या दी जाती थी, और ये एक तरीके से भारत के इट्स स्टीप्ड इन द इंडियन ट्रेडिशन, कि प्लेट में उतना ही लो जितना आप खा सकते हो। और मुझे याद है विद्यार्थी परिषद के कैंप में तो मुझे यहां तक बताया गया था कि आपकी स्टील की प्लेट चेक करी जाएगी खाने के बाद, इट शुड शाइन एज इफ इट इज अनयूज्ड। तो मतलब रसा भी सब्जी का उसमें आप वेस्ट नहीं करोगे, यू विल ईट एवरीथिंग दैट यू हैव टेकन। तो लेते हुए सोच लो कितना खा पाओगे। दैट इज द कॉन्शियसनेस दैट इंडिया ट्रेडिशनली एंड ऑलवेज हैड। आखिर हम में तो यहाँ पे काफी 50-60 की आयु के उम्र के लोग हैं, हमारी आयु के। मुझे याद है बचपन में आप कमरे से बाहर कदम उठाओ और माँ या दादी या कोई ना कोई पूछता था पंखा बंद किया क्या, तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों चालू है। आज जमाना बदल गया है कि हम आने वाले हों किधर तो सेक्रेटरी फोन करके पहले ऑफिस में बताता है कि साहब घर से चल चुके हैं, एसी लाइट सब चालू करो तो रूम ठंडा हो जाए उनके पहुंचने के पहले। दैट इज द कल्चरल शिफ्ट बिटवीन ट्रेडिशनल इंडिया एंड द वेस्ट दैट वी सी अक्रॉस द वर्ल्ड। और आपको सुन के बड़ी ताज्जुब होगी, एक क्लाइमेट चेंज के इन्वेस्टमेंट फोरम पे मुझे इन्वाइट किया सेक्रेटरी केरी ने, बड़ा इंसिस्ट करके बुलाया, मैं गया। वैसे ही एक पैनल डिस्कशन में बात करते हुए, और ये बात प्रकाश जी आप जरूर कोई ना कोई फोरम पे, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी बताइएगा, वो मैंने डिस्कशन के टाइम पे वो फोटो दिखाई, कैमरा फोटो फ्रॉम माय मोबाइल फोन, कि दिस इज न्यूयॉर्क सिटी येस्टरडे और 2 days बैक जब मैं था वॉशिंगटन में था सेमिनार। फिर मैंने एक और फोटो दिखाई उसी दिन के सुबह की, व्हाइट हाउस के सामने वाले होटल में ठहरता था तो मॉर्निंग वॉक करने निकला था। इट वॉज द सन वॉज आउट वेरी अर्ली, इट वॉज ब्राइट। मतलब यहाँ पे अगर कोई दोपहर के 11 बजे का समय पे जो जिस प्रकार से रहते हैं मुंबई, उस प्रकार का मौसम था। और मैं वॉक कर रहा था तो मैंने सडनली देखा व्हाइट हाउस के चारों तरफ स्ट्रीट लाइट्स वर ऑन, चारों तरफ व्हाइट हाउस के। तो मैंने उस सेमिनार में, इट वाज टू सी हाउ टू क्रिएट फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर क्लीन एनर्जी। उसमें मैंने कहा कि भाई वो तो बाद की बात है, पहले ये वेस्ट तो रोको। व्हाई आर द स्ट्रीट लाइट्स ऑन ऑल अक्रॉस द व्हाइट हाउस, वेर यू स्टे, दैट्स वेर यू वर्क आउट ऑफ। तो एक और व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति, उसी पैनल में मुझे कहता है, oh, but how, what do? We have to sell our electricity somewhere. That is their consciousness towards environment, towards climate change, towards the problems of the world. End of the day, everything for them is about economics, profit. मेरा क्या, मेरी फैक्ट्रियों का क्या, मेरी जॉब्स का क्या। अभी अभी हम WTO में भी एक केस हारे जहां पे हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा प्रोटेक्शन दे रहे थे जो सोलर पैनल्स, मॉड्यूल्स वगैरह बनाते हैं। मैंने बात की, उनके सभी नेताओं से बात की,
everybody. I said, look, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को मेरे रिक्वेस्ट पे मैंने मना लिया है कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी मत लगाओ, क्योंकि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है तो सोलर का कॉस्ट इतना महंगा हो जाएगा कि हम आगे चल के भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन दे ही नहीं पाएंगे. तो मेरे रिक्वेस्ट पे और मेरी कमिटमेंट पे, वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कमिटमेंट है कि मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करूंगा, और आज भी मैं उस पर कायम हूं. उस पर उन्होंने विड्रॉ किया अपना एंटी डंपिंग का जीता हुआ केस जिसमें अमेरिका के ऊपर एंटी डंपिंग लग सकती थी, अदर कंट्रीज ऑल्सो. उन्होंने तो विड्रॉ किया. 400 मेगावाट डोमेस्टिक पैनल्स प्रोड्यूस होके लगे हैं भारत में अभी तक, और आपको उस पर भी इतराज है. आप उस पर भी WTO में जाके रोकना चाहते हो. आप रोकोगे, उसका परिणाम क्या होगा कि भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स फिर एक बार एंटी डंपिंग लगाएंगे. एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई और मटेरियल आना बंद हो गया, महंगा पड़ गया, और महंगे बिजली के कारण हम बेच नहीं पाए, तो भारत का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम ठप, टोटली फिनिश, गॉन फॉर अ सॉन्ग. तो तुम्हारे चाहत क्या है? बोलते नहीं वो सब अलग है, पर हमको तो ट्रेड नेगोशिएशन में हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप डोमेस्टिक वो लगाओ. मैंने यहां तक रिक्वेस्ट की कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी को जब हम कह रहे हैं कि ये एक विश्व स्तरीय समस्या, इट इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द वर्ल्ड, लेट्स एटलीस्ट कीप रिन्यूएबल एनर्जी आउट ऑफ ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस. नहीं, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, हम तो लगाएंगे, WTO केस लड़ेंगे, आपको रोकेंगे कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सके. दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ द वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड. और ये रिकॉग्नाइज करके हमको आगे अपना कार्यक्रम बनाना पड़ेगा. ये जो $100 बिलियन फंड की कमिटमेंट है उनकी, ये कितनी है? 10 साल या 7 साल पुरानी कमिटमेंट है शायद, कभी 9 की 8 साल पुरानी, 7 साल पुरानी एग्जैक्टली. आज तक एक दमड़ी कौड़ी नहीं आई है, ₹1 नहीं आया. दैटली ग्रीन क्लाइमेट फंड छोटा मोटा सहयोग देते हैं, $1 बिलियन का कोई लोन वगैरह, वो भी पूरे ब्याज पे, सॉवरेन गारंटी के साथ 2 साल लगाते हैं एट एन एवरेज कोई लोन सैंक्शन करने के लिए. 2 साल, 1.5 से 2 साल, और फिर $1 बिलियन नहीं दे दिया. ऐसा एहसास करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं जैसे हमने आपके देश को खरीद लिया $1 बिलियन में. मतलब हमने तो इतना बड़ा काम किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको $900 मिलियन या $1 बिलियन लोन देके हमने अपना ऋण चुका दिया. इस प्रकार का एहसास दिलाते हैं. मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार इस प्रकार से भ्रमित भी नहीं होती है, इससे कोई लोभित भी नहीं होती है. एंड वी स्टैंड ऑन आवर प्रिंसिपल्स कि हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले या ना मिले, हम उनके सामने ना तो माथा झुकाएंगे ना घुटने टेकेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी प्रॉमिस्ड कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा उद्देश्य है कि हम विश्व में देश की जनता के प्रति भी और विश्व के प्रति भी जो हमने एक प्रतिबद्ध किया है कि हम अपने देश को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे, हमारे देश में प्रदूषण कम करेंगे. We are committed to each one of what we have said as our possible contributions. All our programs will stand, all our programs will be carried out on track, irrespective of any obstacles that the Western world may bring, irrespective of whether they support our efforts or they don't support our efforts. I am confident that under leadership of evangelists like Prakash Javadekar, who are so committed to the environment, who are passionate about their commitment to the environment, I am very confident that all of us, the people of India and the government of India, will work together so that we can leave behind for our children a better world than what we have inherited. And that, ladies and gentlemen, is a commitment I can make at least from the side of electricity, power. मेरे पास तो दुर्भाग्य से बहुत awkward situation है.
I am the polluter and I am expected to save the pollution. पर दोनों का महत्व है. कोल अनिवार्य है. भारत में एक बेस लोड तो चाहिए, नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी 5-5:30 बजे बंद कर देनी पड़ेगी. सोलर एनर्जी जब 5:30-6 बजे कम होते जाएगा, दुनिया कहती है कोयला इस्तेमाल मत करो, तो 5:30 के बाद यूनिवर्सिटी बंद. हम सब गाड़ियां चल पाएंगे पेट्रोल, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी तो एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे. घर जाने के बाद अंधेरे में कैंडल लाइट डिनर होगा. दैट विल बी वेरी रोमांटिक. अच्छा है टेलीविजन कम से कम बंद हो जाएगा. बट ट्रूली कोयले का अपना महत्व है. बेस लोड प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम रिन्यूएबल एनर्जी को सुपर इम्पोज करके बढ़ावा दे सकते हैं. सस्ती भी बिजली देता है. आज भी देश में हर घर तक बिजली पहुंचाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, उसके साथ साथ पहुंचाने के साथ साथ उसको सस्ती रखना पड़ेगा. आज देश के गरीब की अपनी समस्याएं हैं. उन समस्याओं के बीच में उनको ये सुविधाएं देनी है सस्ते दर पर. और साथ ही साथ कोयला इस्तेमाल करते हुए कोयला कैसे साफ करें, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज की तरफ जाए, सुपर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की तरफ जाए. किस प्रकार से जो कार्बन निकलता है उसको कैप्चर करके कुछ किया जा सकता है. आवर फोकस इज ऑन दोज एलिमेंट्स ऑफ कोल. While simultaneously, India has embarked on probably the world's largest renewable energy program. In the history of India, no nation has ever embarked on a program as ambitious as India's renewable energy program. I'm delighted to share with you, the year has just got over day before yesterday. And जो भारत का सोलर एनर्जी मिशन था, जिसमें नेशनल सोलर मिशन, जिसमें प्लान किया था 20,000 मेगावाट हम 2022 तक पूरा करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा थी कि हमने इसको स्केल अप करना चाहिए. उन्होंने इसको 1 लाख मेगावाट 2022 तक करेंगे. 5 टाइम्स स्केल अप किया. और जब हम सरकार में आए तो मात्र 2,400 मेगावाट सोलर एनर्जी थी पूरे देश में. 2,400 मेगावाट. उसको 1 लाख मेगावाट करना मात्र 7 वर्षों में. दैट इज द चैलेंज ही टुक अप. एंड यू ऑल नो प्राइम मिनिस्टर टेक्स अप all challenges to scale, because he believes unless you have very aggressive targets, unless you challenge yourself to do extraordinary performance, unless you keep very, very ambitious goals, you will never achieve extraordinary results. You'll never be able to exceed the expectations or the needs of the hour. तो बहुत aggressive challenge रखने में believe करते हैं और उसका लाभ होता है. अब उन्होंने 1 लाख का जब टारगेट तय कर ही दिया तो आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 12 महीनों में वी हैव बीन एबल टू बिड आउट 19,000 मेगावाट्स ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स. तो जो 20,000 का लक्ष्य 2022 में था, मेरा अंदाजा है वो 20,000 का इंस्टॉल कैपेसिटी हम 2017 तक कर लेंगे. 5 years ahead of schedule. और 2022 तक 1 लाख तो करना अनिवार्य है. हम कोशिश कर रहे हैं उसको एक्सीड कैसे करना. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. मनी इज अ चैलेंज. वी नीड लो कॉस्ट लॉन्ग टेनर फंडिंग. उसके लिए लगे हैं काम पे, लाएंगे कैसे भी करके. अंतर्राष्ट्रीय पैसा मिले ना मिले, भारत में भी बहुत क्षमता है. भारत में भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास इनफ वेरविदल है, इनफ पैसा है कि वो ये काम कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है. कैसे ग्रिड इंटीग्रेट करना, एफिशिएंसी सुधारना सोलर की, कैसे उसकी ट्रांसमिशन में कॉस्ट को कंट्रोल में रखना, कम रखना, कम जमीन लेके कैसा उत्पादन बढ़ाना. तो सोलर थर्मल वगैरह डॉक्टर काकोडकर के नेतृत्व में उसमें रिसर्च भी हो रहा है आईआईटी के साथ. सोलर थर्मल जिससे 24 घंटे बिजली मिल सके. एनर्जी स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज सस्ती हो और बड़े पैमाने में देश में भी बन पाए, जिससे 24 आवर पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी हो सकती है. अन्य अन्य प्रकार के रिसर्च में सरकार भी जुटी हुई है.
सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस लाइक आईआईटी या सीडब्ल्यू वगैरह सब इसमें सहयोग करते हैं, काम करते हैं। मैं समझता हूं अगर हम सब ने मिलके ये तय कर लिया कि जो प्रकाश जावड़ेकर जी वहां पे साइन कर रहे हैं 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, ये प्रकाश जी का एफर्ट जो है ये वेस्ट ना हो। प्रकाश जी ने जिस प्रकार से एनवायरनमेंट को संभालने और सुधारने में जो प्रयत्न किए हैं, उसकी जिम्मेदारी अगर पूरा भारत के 125 करोड़ लोग ले लें, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अचीवेबल टारगेट्स हैं। हम इससे भी बेटर कर सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में ये टीम इंडिया की जो स्पिरिट है, ये जो हम सबके मिलजुल के काम करने का जो एक कमिटमेंट है, इसको आगे चलाएं और इसमें सभी सम्मिलित होती है। चाहे उन्होंने अभी जिक्र किया स्वच्छ भारत का, स्वच्छता एक बहुत अहम भूमिका प्ले करेगा एनवायरमेंट को साफ रखने में। एक छोटा कार्यक्रम है, विपक्ष के कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाने की कोशिश की, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि स्वच्छता इज नॉट ओनली अबाउट क्लेanलीनेस, इट्स अबाउट आवर हेल्थ, इट्स अबाउट वेस्ट, इट्स अबाउट एनवायरमेंट। और एक एक कार्यक्रम, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो पावर फॉर ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स अल्टीमेटली लिंक अप टू एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट, अ ग्रीन प्लैनेट। और जब ये सभी प्रोग्राम्स एक साथ तेजी से प्रगति करेंगे, तो मैं समझता हूं आगे आने वाले दिनों में इंडिया विल लीड द वर्ल्ड रादर देन फॉलो द वर्ल्ड। वी विल लीड द वर्ल्ड इन क्लीन टेक्नोलॉजीज, we will lead the world in clean energy, we will show the world the path, just like our tradition, heritage says, of saving the universe, protecting the universe, leaving behind for our children a much better place to live in, to work in, to enjoy life in. Thank you very much, ladies and gentlemen. We would like to welcome Dr. Mathur Saab for his arrival, and on behalf of